శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణాసం చెప్పుకోవాలండి. సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. ఇప్పుడు ముందుగా సంకల్పం చెప్పుకోవాలి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శంకులం విష్ణుభక్తి యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోః మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్యసన్నిధౌ కళ్యాణమండపే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేరుని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి ఉండించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ ఆభయ
आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் எம்பெருமானை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தில் திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்போம். இவ்வளவு நேரம் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். ஆன்லைன் மூலமாக பதிவு செய்த பக்தர்களுக்கு சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டு நம்முடைய வீட்டில் இருப்பவர்களுடைய நாமம் கோத்திரம் சொல்லிக்கொண்டு அந்த பகவானை சரணாகதி அடையலாம். அந்த சங்கல்ப மந்திரத்தை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, இந்த நன்னாளிலே அந்த பகவானையும் அவரது உபய நாச்சிமார்களையும் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். வெங்கட்டவன் என்றாலே பாவங்களை அழிக்க கலியுகத்தில் வெங்கடேஷ பெருமாளாக அவதாரம் எடுத்தார். அப்படிப்பட்ட ஏழுமலையானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை கண் குளிர சேவித்து கொண்டுள்ளோம். சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பரந்தாமனை இதோ திருமலையில் இருந்து அர்ச்சா ரூபியா எழுந்தருள் இருக்கும் மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். இரு கரம் கூப்பி கண் குளிர. இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார். அந்த அற்புதமான மங்களகரமான கைங்கரியத்தை நாம் அனைவரும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். வினா வெங்கடேஷம் நநாதோ நநாத சதா வெங்கடேஷம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி என்று அந்த பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்போம். சென்று சேர் திருவெங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழ நம்பினை ஒய்யுமே. நம் ஆழ்வார் வெங்கடத்தில் உரைகின்ற திருவெங்கடமுடையானை தரிசிப்பதற்கு முன்பாக இந்த திருமலை ஆழ்வாரை தொழுவதே நம் வினைகள் அகழ்வதே போதுமானது என்கிறாராம். லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூஜோ பூஜோ நமாம்யம் பிராணாநாஜம்யா. मध्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयचरविष्टा जामस्यां सुपतिदो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सुद्धिपुण्याः वादनं करिष्ये. आदौ निर्विघ्नेन प्रसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये. ततः कलशाराधनं करिष्ये. दाराद सप्तत्सुतमानसेषु सरत्सरत्सु परिपूरितेषु अपोमृगण्डं प्रतिमादिविष्ये. ऋणोमि दत्ताकं सुचरकं सुचर्म इदमावत्सिवाजपदमाज्यान्ता जाततमाशुभाशुपदमा स्मूत पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाशा
विददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्टर् विश्वे देवा मञ्चन्तु मृतस्वस्य ओं भो वर्णमावाहयामि प्रजेदसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि जातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रेत सुप्रसन्न वरदो भवतु ओमाग्ने जोजस्मात् वजामहे त्वा विश्वे जनात्मन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुकुदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सुस्तान्दनिदान् ददातु ओं भू स्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतेमावाहयामि वामे दिगामावाहयामि स्वक्षेणाय नमः इदमासन स्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि स्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः स्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि स्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रेत सुप्रसन्न वरदो भवतु भवद्वृणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्मा स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगितां प्रजापतिः शाम्यन्तगौराणि शाम्यन्तमापानि शाम्यन्त्वायितयः शिवानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तगौराणि शाम्यन्तमापानि शाम्यन्त्वायितयः शिवानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तगौराणि शाम्यन्तमापानि शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मदो देवा वन्तु नो यदो विष्टुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्टुर्विचक्रमे त्रेधानतदेपदं समूढमस्य पागुंसुरे त्रेण पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाज्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पुष्कते यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सकः तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुराददं तद्विप्रासो विपण्यवो जगृवागुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयावदेवाः भद्रं पश्ये माक्षपरिचरित्राः स्तरेरङ्गे सुष्टुभागुं सस्तनोभिर्विजयमहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवाङ्गित्रानश्चक्राचरसन्तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीनुषुधायुद्गन्तो अतिथिर्झौरितिरन्तरिक्षम् अतिथिर्मातास्य पितास्य पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनः अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वट्कुर्वेदोपव्युषम् यदा वै सूर्योपदेति अदनक्षत्रं ज्ञेति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते दिविश्रेष्वान्तरिक्षेदस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समति ब्रह्मवच्च सायित्वा पवमानस्सुवर्जिनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोदिज पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदेद्यत् अग्ने कृत्वा कृतोगुं वृणो यत् पवित्रमुच्चषे अग्ने विदतमन्तराः ब्रह्मतेन पुनेमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण देवेन च यः पावमाने रज्येति ऋषभिः सम्पृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सत्पिर्मदोदकं पावमाने स्मस्तजनेः सुतगायुकृतस्तुतः ऋषभिः सम्पृतोर्जः ब्राह्मणेषु मृतमोहितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रः सदोद्यामगुं हिरण्मजो तेन ब्रह्मविदो भजं भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणस्य मेच्या नमो राजा प्रभिनापि पुनातुमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातुवेषितं सन्नो अस्तद्विपदे सन्तुनिष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिशु देवार्चजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशुवाधा पितरो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्या बवोषतयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजां दिशेज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोदराधरैर्नाघेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोत्पदे प्रजदाने हस्मान् स्वावेशोहणमेव भवानः यत्ते जोनं प्रतिदन्नो जुतस्मात् तन्नगेत्वपदे चिञ्चदुष्पदे अमेवः वास्तोत्पदे विश्वारूपाण्या विशन्
सकासु देवयेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुखपदास्थानं प्रतिज्ञापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வச்சன இவை அனைத்தும் இனிதே முடிந்தது. இதை அடுத்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை நடக்க இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பகவான் அந்த தச அவதாரங்கள் எடுத்து ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒரு நாமங்களை கொண்டு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து நமக்கு அருளி செய்தார். அப்படிப்பட்டவர் அருதகிரி என்ற தலத்திலே அருள் புரியும் பகவானே, மூங்கில் குழலினை ஊதி இசை பொழிந்த கண்ணப்பிரானே, என் கண்களுக்கு காப்பாற்றும் கடவுளாக மட்டும் தெரியவில்லையே நீ. விளையாடும் விளையாட்டு கண்ணனை போலவே உனது விளையாட்டுகளில் நல்ல பகுத்தறிவு புகுத்தி எங்களது பாவங்களை போக்கும் பரந்தாமனே, உன்னை சரணடைகிறேன், எங்களை காப்பாற்று என்று பக்தர்கள் தங்களுடைய மனதில் எழுந்து வியக்கத்தகும் காட்சிகளை கூறி உன்னை வணங்குகிறோம், எங்களை அருள் புரிவாய் என்று பெருமாளையை வேண்டுகின்றனராம். அதேபோல் அந்த பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக பக்தர்கள் வருகிறார்கள், சேவிக்கிறார்கள். ஆனால் தேவர்களை எல்லாம் கூட ஆவாகனம் செய்கின்ற கைங்கரியம் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் அல்லவா? அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியத்தை சேர்த்து அதிலே நீர்த்திரு துளாயால் பூஜை செய்து அந்த பகவானுடைய கல்யாணத்திற்காக தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அர்ச்சகர் சுவாமி. குளிர்ச்சி தரும் பாக்கு மரத்தின் பாலைகள் விரிந்து காற்றில் அசைய சூரியனுக்கு வெண்சாம்பரம் வீசுவது போல தோன்றும் மலைதான் திருவெங்கட மலை. கடல் சூழ்ந்த வனமே மிக்க துவாரகை நாட்டை ஆண்டவனும் கடலுக்குள் மந்திர மலையை மத்தாக நாட்டினவனும் ஆன பெருமாளே, கோபியர்களின் அன்பிற்கு கட்டுப்பட்டவனே, உன்னுடைய லீலைகளை என்னவென்று கூறுவோம் என்று அந்த பகவானை இவ்வாறெல்லாம் துதிக்கிறார்களாம். எப்படி என்றால், பக்தர்களே, முன்பு ஒரு காலத்தில் பிருந்தாவனத்திலே பிருககோஸ்வாமி என்ற வைஷ்ணவ துறவியர் கோயிலில் வழிபாடு செய்கிறார்கள். அப்படி அந்த திருமுறை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுறை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை இதோ இப்பொழுது மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்ய உள்ளார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்தை நாம் இப்பொழுது சேவிக்க உள்ளோம், ரக்ஷா பூஜையை. அந்த ரக்ஷா பூஜையில் நாகராஜன், அதாவது ஆதிசேஷனையே ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்து அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷா பூஜை. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இதோ ரக்ஷா பூஜையில் அந்த ரக்ஷையை நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயசூத்ராவதி கயிற்றுக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி பூஜை செய்து கொண்டுள்ளார். அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். स्वयं मृदग्ने मृदजे मुराज ओं भू शेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि सात्विरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रेत सुप्रसन्नो वरदो भवतु
ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विनाभग स्वस्ति देव्यति नर्वणः स्वस्ति भूषासुरो ददातु न स्वस्ति ध्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये वायुरुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावत् स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रपार्ध्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्तिरेन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनो ददे कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददाज्ञादासन्दमेमहे स्वस्त्यैनन्दाक्षिमरिष्टनेमिर्महद्भूतं वागिसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभ ब्रह्मांडे नास्ति किंचन வெங்கடேஷோ சமோ தேவோ நபுதோ ந பவிஷ்யதி என்று அந்த மலையப்ப சுவாமியையும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமியை இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவத்தை கைங்கரியத்தில் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, ரக்ஷா பூஜையை இனிதே முடிந்தது. அடுத்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம். ஆதிசேஷனின் ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி அந்த பூஜையை தான் இப்பொழுது நாம் தரிசித்தோம். அந்த ஆதிசேஷனே இங்கே இந்த கலியுகத்தில் திருமலையாக படர்ந்து அவருடைய தலைப்பகுதி திருமலையாகவும் உடல் பகுதி அகோபில்லமாகவும் வால் பகுதி ஸ்ரீசைலமாகவும் கருதப்படுகிறது. அந்த திருமலகிரி வாசனாக நமது எம்பெருமான் எழுந்தருளி உள்ளார். நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னபடி கொல்லிமலர் காவலனான குலசேகர ஆழ்வார் திருவெங்கடமுடையான் சம்பந்தப்பட்ட பாசுரங்களை திருவெங்கடமுடையானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுமாறு பாக்கியத்தை கேட்கிறாராம். ஊனேறு செல்வத்து உடன்பிறவி ஆண் வேண்டேன் ஆனேற வென்றான் அடிமை திறம்பல்லால் கூனேறு சங்கமிடத்தான் தன் வெங்கடத்து கோனேறி வாழும் குறுங்காய் பிறப்பேனே என்று தொடங்கி திருவெங்கட சொன்னையில் மீனாய் பிறக்கும் விதி உடைய நான் பக்தர்கள் எம்பெருமான் எழுந்தருளிருக்கும் இந்த திருமலையில் அவர் எவ்வளவு உயர்த்தி சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்கள். இப்படி பூ உலகில் பிறந்த ஆழ்வார்களே இருக்கும்போது பரம பதத்தில் நித்திய பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் கைங்கரியம் நித்திய சூரியனான ஆதிசேஷனுக்கு கலியுகத்திலும் எம்பெருமானுக்கு எந்த வகையிலாவது கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்கிற ஆசை வராதா என்ன அல்லவா? அப்படி திரேதாயுகத்தில் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு இளைவரான லக்ஷ்மணனாக அவதாரம் பண்ணி வனவாசம் பண்ணி தன் தமையனுக்கு அவர் செய்த கைங்கரியம் அளவற்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த கைங்கரியத்தை நாம் மனதிலே நினைத்து கொண்டு இதோ அந்த திரேதாயுகத்தில் ராமச்சந்திர மூர்த்தியாக அவதாரம் பண்ணினை பகவான் இதோ இந்த கலியுகத்தில் நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் பண்ணி நித்தியமும் நமக்கு கல்யாண உற்சவத்தில் அருள் காட்சி கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானை இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம். சர்வோத்தமனான பகவான் தன்னை உபாசித்து பக்தர்கள் நற்கதி அடைய வேண்டும் என்று நானாவித லீலைகளை செய்கிறாராம். ஸ்மரணைக்கு சிரேஷ்டமான பலவித கதைகளின் நாயகன் ஆகிறார். புனித ஸ்தலங்களையும் புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களையும் பவித்திரமான தீர்த்தங்களையும் நமக்கு நிர்மாணித்து கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா? இவ்விதமான பற்பல உபாயங்கள் இல்லாவிட்டால் பாமரர்களுக்கு பகவத் ஸ்மரணை செய்வது கஷ்டம் என்ற உத்தேசத்தில்தான் பகவான் இவ்வளவு அனுகூலங்களை செய்திருக்கிறாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுக்கு இதோ அந்த பூஜை முறையெல்லாம் முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சக்கர் சுவாமி இப்பொழுது அந்த ரக்ஷையை பகவானுடைய அதாவது மலையப்ப சுவாமி திருக்கரத்திலே சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். சப்தகிரி வாசனே ஆதிசேஷனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். மகாபாரதத்தில் பாகவத்தில் மற்றுமுள்ள அநேக புராணங்களில் அவர் பேசிய பேச்சுக்கள் காட்டிய சாகசங்களை தவிர வேறெங்கும் வேறெதுவும் இல்லை என்று நினைப்பது தவறு. ஜகத்தில் நடக்கும் ஒவ்வொரு செயலும் அவன் செயலே அல்லவா? ஜகத்தினர் பேசும் பேச்சுக்கள் யாவும் அவருடையதே. ஆனால் வாழ்க்கையில் நடக்கும் இந்த சர்வ சாதாரண சம்பவங்களில் இறைவனை கண்டு பக்தி செலுத்தும் பக்குவம்
பாமர ஜனங்களுக்கு வருவது மிக மிக அரிது. பகவத் குணங்களை மட்டும் உபன்யாசம் செய்தால் அவைகளை சிந்தித்து முக்தி பெற பாமரர்களால் முடியுமா? முடியாது. ஏனெனில் அந்த நிலை சாதாரண மனிதர்களுக்கு இல்லை. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் படிப்பு, பதவி, திருமணம், இல்லறம், ஏற்ற இறக்கங்கள், இப்படி எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருக்கிறன. இவைகளில் உயர்ந்தவைகள் அவரை ஈர்க்கின்றன. இதனால் அவர்களுக்கு எளிதில் புரியும்படியாக அவர்களுள் ஒருவனாக இருந்து தன் லீலைகளை காண்பித்து தன் மீது பக்தி கொள்ளுமாறு செய்கிறார் பகவான். ஏன் ஸ்ரீராம அவதாரமும் கிருஷ்ண அவதாரமும் இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. பக்தர்களே, ஸ்ரீராமனை போல, ஸ்ரீ நரசிம்மனை போல வெங்கடேசன் பிரத்யோக அவதாரம் இல்லை. பகவானின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் அபின்னம், அதாவது அவைகள் யாவுமே ஒன்று. ஆனால் பகவானுடைய விசேஷ சக்தி ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் வெவ்வேறாக வெளிப்படுவதால் அவதாரங்கள் வெவ்வேறாக தோன்றுகின்றன. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், வெங்கடேசன், பாண்டுரங்க விட்டலன் மூவரும் ஒருவரே என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். வெங்கடேச மகாத்மத்தில் கூட ஸ்ரீனிவாசனே தேவகி வசுதேவர்களை தன் தாய் தந்தையர் என்றும் தன்னை வளர்த்த யசோதை தன் தாய் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் அல்லவா? யசோதையே பகுலா தேவியாக அவதரித்திருக்கிறாள் என்பதை நாம் இந்த மகாத்மியத்தில் காண்கிறோம். இதனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் வெங்கடேசனும் ஒருவரே என்பது தெரிகிறதல்லவா? பண்டரிபுரத்தில் பாண்டுரங்க விட்டலன் சன்னதிக்கு அருகில் ருக்மிணியின் சன்னதியும் இருக்கிறது. இதனால் அவர் ருக்மிணி சமேதனாக கோயில் கொண்டு தான் ஸ்ரீ ருக்மிணி சமேத கிருஷ்ணன் என்பதை காண்பிக்கிறார். 18 புராணங்களில் 12 புராணங்கள் ஸ்ரீனிவாச மகிமையை சொல்லுகிறது. ஸ்ரீனிவாசனின் மகிமை, க்ஷேத்திர மகிமை, அங்குள்ள தீர்த்தங்களின் மகிமை, பகவத் பக்தர்களின் மகிமை, இவைகளை எல்லாம் விரிவாக்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த தச அவதாரை எடுத்து ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரத்தை எடுத்த பகவான் இதோ கலியுகத்தில் திருவெங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து திருமலையில் அர்ச்சா ரூபியா எழுந்தருளி இருக்கும் அந்த மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். இதோ முதலில் பகவானுடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு ஸ்ரீதேவி திருக்கரத்திலே இப்பொழுது அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து கொண்டுள்ளார். பின்பு பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பிப்பார். ரிஷபாச்சலம், அஞ்சனாச்சலம், சேஷாச்சலம், வெங்கடாச்சலம் என்று 4 பெயர்கள் வந்தன. வராக புராணம் இன்னும் 14 பெயர்களை சொல்லுகிறது. அவைகளை தெரிந்து கொண்டு புண்ணியம் பெறுவோம். இஷ்டப்பட்டதையெல்லாம் கொடுப்பதால் அந்த பருவத்திற்கு சிந்தாமணி என்று பெயர். ஞானத்தை கொடுப்பதால் அது நானாச்சலம். எல்லா தீர்த்தங்களின் சன்னிதானத்தை கொண்டிருப்பதால் அது தீர்த்தாச்சலம். எல்லா சரோவரங்களிலும் சிரேஷ்டமான சரோவரம் அங்கிருப்பதால் அது புஷ்கராத்திரி. யமன் இங்கு வந்து தபஸ் செய்து பகவானின் அருண்கிரகத்தை பெறுவதால் இது விஷாச்சலம். விஷ் என்றால் யமன் அல்லவா? தங்கமயமான மேருமலையின் மகனாதலால் இது கனகாச்சலம். நாராயணன் என்ற பண்டிதன் இங்கு வந்து தவம் செய்ததால் இது நாராயணத்ரி. கருடன் இதை வைகுண்டத்திலிருந்து கொண்டு வந்ததால் இது வைகுண்டாச்சலம். நரசிம்மன் இங்கு அவதரித்ததால் இது சிம்ஹாச்சலம். வராக தேவரின் சன்னிதானம் இங்கு இருப்பதால் இது வராகச்சலம். ராமாயணத்தில் வரும் நீலன் என்ற கவி இங்கு வந்து தவம் செய்ததால் இது நீலகிரி. பகவத் பக்தர்கள் இங்கு பகவானுடைய சேர்ந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதால் இது ஆனந்தகிரி. மகாலட்சுமியின் சன்னிதானம் இருப்பதால் ஸ்ரீ சைலம். ஸ்ரீனிவாசனின் சன்னிதானம் இருப்பதால் ஸ்ரீனிவாசகிரி. இப்படி அநேக பெயர்களை வராக புராணம் சொல்லுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து சேவிப்போம் அடுத்த கைங்கரியத்தை. इंद्र शुद्धान आगम शुद्ध शुद्धाभिरोधभिः मयि देवान्द्रवणमायि दन्तामय्यासिरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारावन्तपूर्वेरिट्टास्याम तनुवास्मेराः
उद्धन्यमा नमस्यामेद्यमात्मानं यजमानस्य हन्तो शिवानः सन्तु प्रथमे तन्नो शादा प्रथमे दोगशादा पोदह्यतनेन सौम्य कृणुद्वगं रसना होत विगुंसदे तत्स विदर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष्य जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा जातवेदोपवनस्य रेदो हि समनिर्षते अग्निमस्वस्तादहज्जगं समी गर्भाद्रयन्योमजोभूः घृतप्रदेको घृतजोनिरग्ने घृतस्वमिज्ञो घृतमस्यान्नं घृतपुरुषस्वा सरितो ब्रिवन् घृतं ब्रिवन् सरिजा यक्षदेवान् आयुर्दाग्ने हविषो जुजानो घृतप्रदेको घृतजोनिरेति तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि द्विजो जो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभ ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः वेनावः स बुद्धियापमास्यविष्ट सतस्तयोनिमदस्य विवः ओं भो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन सोमो देनकुं सोमोर्वन्तमाचकुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकुं सवेजं विदस्रोणं यो ददात तस्मै ओं भो सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इंदुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासन ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वृद्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रे यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वृद्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रे यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादाधावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञजेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे उत्तरतो विष्णोस्तोपोसे प्राच्य विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे दारुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवता वृद्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्र यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणज कोपो जिनत्को सवो जिनत्को सव्यचिन्तान्विषः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यचिन्तान्विषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणप्रणदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासरिज्ञमावाहयामि यज्ञदेविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतये जुष्ट निर्वभामि इंद्राजुष्ट निर्वभामि अग्नेजुष्ट निर्वभामि सोमाजुष्ट निर्वभामि अग्नेजुष्ट निर्वभामि सोमाजुष्ट निर्वभामि अग्नि सोमाभ्यागुष्ट निर्वभामि प्रजापतये जुष्ट निर्वभामि वसुभ्यो जुष्ट निर्वभामि वरुभ्यो जुष्ट निर्वभामि रुद्रेभ्यो जुष्ट निर्वभामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्ट निर्वभामि बृहस्पतये जुष्ट निर्वभामि मित्राय जुष्ट निर्वभामि वरुणाय जुष्ट निर्वभामि आदित्येभ्यो जुष्ट निर्वभामि अस्मभ्यागुष्ट निर्वभामि पूष्णे जुष्ट निर्वभामि कक्षाजुष्ट निर्वभामि कक्षदेवत सोमाजुष्ट निर्वभामि औपासर्ज्ञाजुष्ट निर्वभामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो जुष्ट निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्ट निर्वभामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरंद्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समिधि स्वाहा अमृतनमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्ष अंतरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्वति स्वापुनात् त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापुनात् त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो
सूर्यस्सरस्वभिः स्वाहा देवस्वा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्सरस्वभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्र्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आध्याचरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजनात्वे नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दिदेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधः प्रसुवा ब्रह्मन् सोमुद्गमादास्वादस्वा समेत यस्वाहा आगार मुहूर्तोस्तु परिणीन् स्पृष्ट्वा वाजब्जादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभोवत्स्पृश्या श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा असुभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासरज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुसायत्राघ्रोति व्याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावेः प्राणानायम्यामस्यां सुवेदितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालोपर्यासे क्रमोपर्यासे यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये अतिदेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधः प्रसुवा ओं मतो देवावन्तु नो यदो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेवदं समूढमस्तभागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पदे इन्द्रस्वयुज्यस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा विश्यन्ति शौर्यः दिवे वदक्षरादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जागृवागं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविधः प्रासाभिः చూచి చూచి నీ పెళ్లికి సోవాన పాడినుగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా చూచి చూచి నీ పెళ్లికి సోవాన పాడినుగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా
చూచి నీ పెండికి శోభాన ఆడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यात् परिमितशक्त्या म्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्राकाशहङ्कारमहदुव्यक्ताख्य सप्तावरुणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रविदिट्टिदान अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालायमानस्य फणिराजशेषस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरेक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डशुण्डाद्दण्डोद्धम्बिते अमरावते तेजोवते संयमने रक्षोवते सिन्धुमते गन्धवत्यलकावते यशोवते त्वट्टदेवपुरे विराजते इंद्राग्नेयमुनिरुच वरुण वाजु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलवलयिते लवनेक्षुरासर्पिरदक्षेर सुत्तोदकाख्य सप्तान्न परिवृते जम्बू प्लक्ष कुशक्रौञ्च जाकजान् पुष्कराख्य सप्तद्वेपद्वेपिते माहेन्द्रमलयमदृक्षुन्द्य पारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरिरावत भद्रास्मकेतुमाला हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाग्नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे वृतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारुण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्त्रष्टुः प्रार्थयज्जीवनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामे हे जन्मनि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थम् ततपूर्वेषां तथापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भे पाकलोकितदामादिपसङ्गातः
कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्ते स्त्रे सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थम् श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेत्यर्थम् भृगुमरे चित्रगस्य पादिमेः कोटिचातुर्लक्ष प्रणानेन दिव्यवैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्त प्रकारेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थम् कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणक गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैगानस भगवस्यास्त्रोक्त मार्गेण आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्योह प्रवर्तमानस्य परतद्विभवव्योहन्तर्यामे अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसाद उत्पस्थितलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिने भार्गवत्योपमा ऊर्वमेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेविन पादारविन्दां श्री महाविष्णोः पक्षस्थल निवासिने आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरे अत्यंत सौंदर्यवते रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्ने कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामिष्टवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिकेशजे कन्यां स्वलंकृतां साध्वे सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथो कमलापतेः कन्यादान मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்து மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானத்தை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பத்மாவதி நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வந்தவள். 5 வயதில் அரசன் அவளுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுத்தான். மகிமை உள்ளவனான காரணத்தினால் கேட்ட மாத்திரத்திலேயே எல்லாவற்றையும் நன்கு கற்றுக்கொண்டாள்.
அவள் 14 வயது மங்கையான பொழுது அழகில் ரதியை போலவும், கல்வியில் சரஸ்வதி போலவும், தூய்மையில் பார்வதி போலவும், உருவத்தில் திருமகளைப் போலவும் இருந்தாளாம். ஒரு நாள் பத்மாவதி கௌரி விரதத்தை முடித்துவிட்டு தோழிகளுடன் அந்த புறத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்தாள். அச்சமயம் கடவுளின் திருநாமத்தை பாடிக்கொண்டே நாரதர் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். பத்மாவதி மிக மிக பக்தியுடன் நாரதரை வணங்கி அவரை உள்ளே அழைத்து கொண்டு வந்து ஒரு அரியாசனத்தில் உட்கார வைத்தாள். பன்னீரால் முனிவரின் கால்களை கழுவி பக்தியுடன் வணங்கினாள். பத்மாவதியின் பக்திக்கு மகிழ்ச்சி அடைந்து நாரதர், குழந்தாய், உனக்கு ஒரு நற்செய்தி சொல்ல போகிறேன், உன் கையை என்னிடம் காண்பி என்கிறார். உன் கைரேகையை பார்த்து வருங்காலத்தில் நேரும் நல்லவை கெட்டவை பற்றிய விவரங்கள் கூறுவேன் என்றாராம். பத்மாவதியும் நாணத்துடன் முனிவரின் முன் சென்று தனது இடது கையை நீட்டினாள். கை ரேகைகளை பார்த்த நாரதர், மங்கையே, உன் கையில் பத்ம ரேகைகள் உள்ளன. சந்திரனை போல முகமும், தாமரை பூவை போன்ற கண்கள், கண்ணடி போன்ற கண்கள், கோவை பழம் போன்ற இதழ்கள், முத்து கோர்வை போன்ற பல் வரிசைகள் முதலிய நல்ல குறிகளுடன் நீ விளங்குகிறாய். நான் உண்மையை சொல்லுகிறேன். உன்னை பார்த்தால் எனக்கு திருமகளின் நினைவு வருகிறது என்று கூறிவிட்டு அவர் தன் பயணத்தை மேற்கொண்டாராம். பத்மாவதி மனப்பருவத்தை அடைந்தால் தகுந்த மாப்பிள்ளையை தேட அரசனும் அரசியும் முயற்சி செய்தார்கள். அவர்களுக்கு ஒன்று கூட பிடிக்கவில்லை. பத்மாவதியின் அழகை கேட்டு எத்தனையோ இளவரசர்கள் அவளை மனம் செய்து கொள்ள முன் வந்தார்கள். அரசனுக்கு மாப்பிள்ளை பிடிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது? திரும்பச் சென்றார்கள். அரசன் அந்தணர்களை ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் அனுப்பினான். அவனும் தன்னாலான முயற்சியை செய்து வந்தான். ஆனால் எங்குமே அரசனுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கவில்லை. மன்னன் துயரக் கடலில் ஆழ்ந்து விட்டான். ராணியின் துயரத்தை சொல்ல தேவையில்லை அல்லவா? வயது வந்த பெண்ணை எத்தனை நாட்கள் நாம் வீட்டில் வைக்க வேண்டும் என்று வேதனை. இப்படி இருக்கையில் ஒரு நாள் நாரதர் ஆகாஷ மன்னனின் அவைக்கு வந்தார். முனிவரை பார்த்த மன்னன் மிகவும் வருத்தத்துடன், முனிவரே, என் புதல்வி பத்மாவதிக்கு மனவயது ஆகிவிட்டது. எத்தனையோ மாப்பிள்ளைகளை பார்த்தோம். தகுந்த மாப்பிள்ளை கிடைக்கவில்லை. நீங்கள் 3 உலகங்களையும் நன்கு தெரிந்தவர் அல்லவா? ஆகையால் பத்மாவதிக்கு தகுந்த கணவன் யார் என சொல்லுங்கள் என்றாராம். அதற்கு நாரதர், மன்னா, மாப்பிள்ளை தேடி நீர் அலைய வேண்டாம். பத்மாவதி திருமகள் அம்சத்துடன் பிறந்திருக்கிறாள். முன்னொரு காலத்தில் வேதவதிக்கு கடவுள் கொடுத்த வரத்தினால் அந்த வேதவதியை உனக்கு புதல்வியாக கிடைத்திருக்கிறாள். இவளை நாராயணனே மனம் புரிந்து கொள்வான். ஆகையால் நீ மாப்பிள்ளையை தேடி அலைய வேண்டாம், கவலையை விட்டுவிடு என்று கூறி சென்றாராம். அவர் வார்த்தைகளை நம்பி ஆகாஷ மன்னன் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தான். சேஷாச்சலத்தில் வகுலாதேவியின் அரவணைப்பில் ஸ்ரீனிவாசன் சுகமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தார். ஒரு நாள் வேட்டைக்கு போக வேண்டும் என்ற ஆசை அவனுக்கு உதித்தது. வகுலாதேவியிடம் சென்று, அம்மா, நான் வேட்டையாடச் செல்ல விரும்புகிறேன். அதற்கு நீங்கள் சம்மதம் தர வேண்டும் என கூறினான். அவன் வேட்டைக்கு செல்வது வகுலாதேவிக்கு இஷ்டமில்லை. குழந்தாய், காட்டில் எத்தனையோ துஷ்ட மிருகங்கள் இருக்கிறன என்றான். அதற்கு ஸ்ரீனிவாசன் சிரித்துக்கொண்டே, தாயே, பயம் வேண்டாம். துஷ்ட மிருகங்கள் என்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டாது. உன் பிள்ளையின் பெருமை உனக்கு தெரியாதா? வேட்டையாடச் செல்ல எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் அம்மா என்று பிடிவாதமாக கூறினான் ஸ்ரீனிவாசன். அதற்கு ஒன்றும் சரியாக பதிலளிக்காமல் வகுலாதேவி அரை மனதுடன், சரி, உன் இஷ்டம் போல் செய் என்றாராம். வகுலாதேவி கொடுத்த ஆகாரத்தை புசித்துவிட்டு ஸ்ரீனிவாசன் வேட்டைக்குரிய ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு கையில் வில்லும் அம்பும் ஏந்தி தாயிடம் விடை பெற்று கொண்டு காட்டை நோக்கி புறப்பட்டான். சேஷாச்சலத்திற்கு கீழே இருந்த ஒரு பயங்கரமான காட்டில் நுழைந்தான் ஸ்ரீனிவாசன். தன் வில்லில் நான் ஏற்றி சப்தத்தை உண்டு பண்ணினான். இடிகள் விழுந்தது போல அந்த சப்தம் காடெல்லாம் எதிரொலித்தது.
அதை கேட்ட துஷ்ட மிருகங்கள் அனைத்தும் தம் தம் இடங்களில் இருந்து எங்கேயோ ஓட முற்பட்டன. அதுதான் நல்ல தருணம் என்று நினைத்த ஸ்ரீனிவாசன் யானைகளையும் புலிகளையும் வேட்டையாடினான். காடு முழுவதும் ஒரே சப்தம். அப்போது ஒரு பெரிய யானை பிளறிய சப்தம் கேட்டது. அந்த சப்தம் வந்த திசையை நோக்கியே சென்றான் ஸ்ரீனிவாசன். வெகு தூரம் ஓடிய பின் அந்த யானை மறைந்துவிட்டது. காட்டில் அலைந்ததால் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு தாகம் ஏற்பட்டது. தாகத்தை தணித்து கொள்ள அருகில் இருந்த ஒரு பூஞ்சோலைக்கு சென்றான். அந்த பூஞ்சோலையில் பத்மாவதி தோழிகளோடு அழைத்து கொண்டு நகருக்கு அருகில் உள்ள ஒரு பூஞ்சோலைக்கு வந்தாள். அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஆடல் பாடல்களில் மூழ்கினர். பூஞ்செடிகளுக்கும் தண்ணீர் விட்டனர். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பத்மாவதி தாயாரே இதோ ஸ்ரீ प्रजापति सोमकं राजानमुसृजतां मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे सञ्जीवशरदां सदा श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापति सोमकं राजानमुसृजतां मन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे सञ्जीवशरदां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रदिष्टितमस्तु शुभं शुभम्. श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गोपासनाख्यो लाजहोमं करिष्येत् तेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविदप्रसुमा इमान् लाजानमित्यभिकार्य. इमां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यं जगं वदनात् तदग्निरुणमञ्जदाम्
यन्नातृपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घाजुरस्तु मे बदरे दन्तान् ज्ञातजो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमञ्जनाम् यन्नातृपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घाजुरस्तु मे बदरे दन्तान् ज्ञातजो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमञ्जनाम् यन्नातृपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मुदिरे दन्तान् ज्ञातजो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासामेः प्राणानायजामस्यां समदिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सगन्मा गोपासनाख्यो सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णुं होष्ये ऋतेन मन्यस्मान् अनुमतेन मन्यस्मान् सरस्वतेन मन्यस्मान् देवदविदप्रसुमान् ओम मतो देवावन्दनो यदो विट्टलविदक्रमे पृथिव्या सप्तदाम विस्माः इदं विट्टलविदक्रमे त्रयधानतदेपदं समोढमस्य भागं त्रये स्वाहा त्रीणि पदाविदक्रमे विष्णुर्गोता आदित्यः पदो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णाकर्माणपस्कतयदो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य का स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा विष्णुन्दशौर्यः दिवे वदक्षरादग्गुस्माः तद्विप्रासो पञ्चभोजा कृपागुं सस्कमिन्ददे विष्णार्यत् परमं पदग्गुस्माः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामेः प्राणानायम्यामस्यां स्मृतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सगन्मा गमोपासनाख्यो उपरिट्टादन्तो होमं करिष्ये ऋतेन मन्यस्मान् अनुमतेन मन्यस्मान् सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविदप्रसुमा यदस्य कर्मणोत्तरेरितं विद्वान्योन महाकरम् अग्निसत्सुतकृत् विद्वान् सर्वज्ञसुगतं करोतु स्वाहा अग्नये सुतकृता उदयनां कामानागुंसमध्ये त्रये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये सुतकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्महात्मा बोधग्निस्तत्पुनरागा जातवेदामचुरनिस्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे सुमायमाञ्चक्षरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसननिष्टेभ्य स्वाहा देशुरत्यै स्वाहा दुष्कृत्यै स्वाहा दोराद्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा समृद्ध्यैश्वर्मा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा वेदो ओषेदसमे स्वाहा समिदसे यमस्य देव मृत्योर्मोवाहि स्वाहा सोमस्य देव चित्तं मे वाहि स्वाहा वाजोर्दे महि प्राणान् मे वाहि स्वाहा ब्रह्मणोदे मे बुद्धिं मे वाहि स्वाहा सप्तमे अग्ने समुद सप्तदिप्वा सप्तऋषगे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्मा तदप्तयोने रार्पणस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्गुप्तगुस्वाहा वेदर्गुप्तगुस्वाहा जोर्गुप्तगुस्वाहा अग्निर्जेन्नं वेदिर्जेन्नं जोर्जेन्नं प्रथमे जेन्नं वो सप्तदेवजेन्नं कृतदान वित्वारत्तप्रदेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो द्रोसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सृप्यन्ताम् अतदेन्वमग्गुस्तानवदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामेः आवाहयदेवताय नमः यदा सुखं प्रदासं प्रतिष्ठापजां क्षमणार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय पवित्रमस पवित्रं मे भोजा स्वाहा सर्वमस सर्वं मे भोजा स्वाहा अक्षतमक्षित्येजो मे अक्षधर्मा मे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणाजां उदराजां उदीक्षां ऊर्ध्वाजां अधराजां मार्जयन्तां पश्चिमतः परदिमपनजा दक्षिणतः परदिमपनजा उत्तरतः परदिमपनजा पश्चिमतो विष्णोस्य नमसे
सर्वान् प्रसमोह्य गन्धं विसृज्यां प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामा बभोषदजोमृताम् शुद्ध्यन्तान्ते वसदनकं शुद्ध्यन्तान्ते वसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निरमानुतनो कश्यपश्चत्रजाजुषम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपश्चत्रजाजुषं यद्धेवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषं दीर्घायुत्वा च बला च सदा च सदन्तवर्तक्षेत्रजाभोजिष्ठामजोपवस्थानवोर्जेतदातरा महेरणा जचक्षुषे यो वत्सवदमोरधस्तस्य पादगजेनः उषदेनवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्यक्षजा यजन्मुद आपो जनकदातनः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत्कृतन्तमजाते वा परिपूर्णस्वदश्चमयि प्रायश्चित्तानि शेषान् होमगर्भाण्यवान् वै तानि शेषानि देशेन श्रीकृष्णान् स्मरणं मदं कायेन वाचा मनसेन्द्रे वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखदास्तान् प्रजां कुमनार्दं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை செவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் லாஜ ஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்ணாகுத்தியுடன் முடித்தார். இதோ அதை தொடர்ந்து நாம் இப்போது சேவிக்க இருப்பது வாரணம் 1000 கைங்கரியம். அந்த ஆண்டாள் எழுதிய நாச்சியார் திருமொழி பாசுரங்களிலே 14 பாசுரத்தை பகவான் தான் திருமணம் செய்து கொள்வதாக வாரணம் 1000 பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய் உருட்டுதல் சம்பிரதாயத்தை செய்வது வழக்கம். பக்தர்களே, இதோ அந்த சம்பிரதாயத்தை தான் நமது மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் கூட அர்ச்சகர் சுவாமி செய்து கொண்டுள்ளார். இதோ வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து இப்போது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல். கைகளிலே புஷ்பங்களை வைத்துக்கொண்டு பகவானை பிரார்த்தனை செய்தால் அவர் நமது கோரிக்கைகள் தீர்த்து வைப்பார் அல்லவா? அப்படி அந்த நறுமணமிக்க புஷ்ப மாலையை இதோ பகவானுக்கு சமர்ப்பித்த பின்பு அவரது பிராண நாயகியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்த மாலையானது பகவானின் கழுத்திலே இருந்த மாலை ஆகையால் அவருக்கே உரியது என்று நினைத்து அந்த பெரும் மாலையை பகவானுக்கே இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி
இப்பொழுது திரும்பவும் கொண்டு போய் சமர்ப்பிக்கிறார். சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். அதேபோல் அந்த பெருமாள் தோளில் அலங்கரித்த மாலை பூமி பிராட்டியான அந்த ஆண்டாள் சுடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கே சேருகிறது. அவளது கழுத்திலே அந்த மாலையை ஆசையாக போட்டுக்கொண்டு திரும்பவும் வெங்கடவனுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் அலங்கார பிரியர். புஷ்ப மாலை இல்லாமல் அவருக்கு அலங்காரம் நன்றாக இருக்காதல்லவா? அப்படி அந்த புஷ்ப மாலையை அந்த பரந்தாமனுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சப்தகிரி வாசனே, வெங்கடவனே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். இப்படி 3 முறை அந்த மாலையை மாற்றியாக்கிவிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமான் பக்கத்தில் ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். இதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோப்பணம் என்கிற தலம்பராலு கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் அக்ஷதாரோப்பணம் என்கிற தலம்பராலு கைங்கரியத்தை நாம் சேவிப்போம். அக்ஷதாரோப்பணம் என்பது மூவரின் சிரசின் மீது அக்ஷதையை தூவி அக்ஷதாரோப்பண கைங்கரியத்தை செய்கிறார் அர்ச்சகர் పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद।
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ